10 साल पहले वहाँ इंसानी कदम पड़ा था, अब तो वो जंगल है। आप वहाँ जाओगे तो जिंदा लौट के नहीं आ पाओगे। वैसा तो वो अमृत कुंड है, लेकिन वो मौत का रास्ता है। क्या आप अमर होना चाहते हैं? क्या आपके दिल में भी यही तमन्ना है कि आप एक लंबी उम्र तक जीते रहें? वेल, ऐसा कौन नहीं चाहता। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त जिस पहाड़ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक ऐसा अमृत कुंड है जो आपको सदा के लिए अमर बना सकता है। કોઈ કહે છે તો અમે માનતા નથી અને પડતાલ વગર કોઈ કહાનીને છોડતા નથી, પરંતુ આ દાવો નહીં, ખતરાની જાળ છે। આ પડતાલ નહીં, જિંદગી સાથે એક રમત હતી। લોકોએ કહ્યું આ પર્વતો અંદર અમૃતનો એક કુંડ છે, તો રહસ્ય શોધવા અમે પહાડની છાતી પર ચડી ગયા, જ્યાં સામનો થયો નાગસેનાથી। જ્યારે પર્વતોની છાતી ચીરીને પર્વતની અંદર પ્રવેશ કર્યો તો એક એક શ્વાસ માટે તડપતા રહી ગયા। આટલું બધું સહન કર્યા બાદ જ્યારે કુંડની નજીક પહોંચ્યા તો આ જુઓ, એક એવું સત્ય જે પૌરાણિક પહેલીઓથી પડદો ઉચકશે। આજે એવી જગ્યાની મુલાકાત લઈશું જે કળયુગમાં ત્રેતાયુગની યાદ અપાવશે। આજે એક એવા દાવાની વાત કરીશું જેની પડતાલ જોઈ તમે કાંપી ઉઠશો। નમસ્કાર, વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। અમૃત કુંડ મતલબ એક એવું તળાવ જેના પાણીમાં અમૃત છે। સાંભળીને તમે ચોંકી જશો, કેમ કે આજના સમયમાં અમૃતની વાત કોણ કરે? અમૃત પૌરાણિક કથાઓની કહાની છે। એ પહાડની અંદર કુંડમાં અમૃત છે એવો દાવો કરનાર લોકોએ એક સાથે 3 પુરાવા રજૂ કર્યા। પહેલો કે કોઈ જળસ્ત્રોત નથી, તેમ છતાં પર્વતની અંદર પાણી વહે છે। બીજું, પાણી વહે છે તેની આસપાસ ઘણી લીલોતરી છે। અને ત્રીજો પુરાવો છે નાગસેના, જે એ કુંડની રક્ષા કરે છે। પૌરાણિક ગ્રંથોમાં અમૃતનો ઉલ્લેખ સમુદ્ર મંથનમાં મળે છે, જ્યારે અમૃત પીવા માટે દેવતાઓ અને દાનવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું। યુદ્ધમાં અમૃતના 4 ટીપા ધરતી પર પણ પડ્યા। એ 4 જગ્યાઓ પર આજે કુંભ મેળો ભરાય છે। શું કોઈ 5મી જગ્યા પણ છે જ્યાં અમૃતનું ટીપું પડ્યું હતું, જે આજે દુનિયાની નજરથી દૂર આ જંગલોમાં ક્યાંક છુપાઈ છે? કદાચ એ જગ્યાને આદિવાસીઓ અમૃત કુંડથી તો નથી ઓળખતા। હાલ તો અમૃત કુંડની શોધમાં અમારી ટીમ છત્તીસગઢના ધમતરીના જંગલોમાં ભટકી રહી છે। હવે અમારી મંજિલ હતી માંદાગીરી પર્વત, જ્યાં એ અમૃતકુંડ હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે। કહેવાય છે કે એ કુંડની રક્ષામાં એક નાગસેન હંમેશા તૈનાત રહે છે। અમારી ટીમ હંમેશા સ્થાનિક લોકોને સાથે રાખીને આગળ વધે છે। લોકોનું કહેવું છે કે જે પણ અમૃતકુંડની શોધમાં નીકળે છે તે મુશ્કેલીઓથી ઘેરાઈ જાય છે। देखिए, अमृत कुंड का पता जानने वाले मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं जिनको पता है, क्योंकि और कोई वहाँ तक गया नहीं है। तो उनमें से एक इस घर में रहते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी मुलाकात हो सके, पता चल सके। अमृत कुंड है या नहीं है? अमृत कुंड तक तो हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं। अच्छा, आप भी नहीं पहुँच पाए थे? हाँ। मुझे लगा आप लोग अमृत कुंड तक गए थे।
अमृत कुंड आप भी नहीं पहुंचे? नहीं, हम इसलिए नहीं पहुंच पाए वहाँ पे अमृत कुंड में कि रास्ते में हम जैसे जाते थे तो आगे सर्फ आता था और कोई जंगली जानवर का आवाज़ आता था। इससे घबरा के हम वापस लौट के आ गए। अच्छा, जी। किस तरह की गुफा है वहाँ पर जो जिसमें अमृत कुंड की बात होती है? वो गुफा किस तरह की है? बहुत बड़ी गुफा है। उसके बाद नीचे की तरफ सुरंग है। सुरंग के अंदर से जाना पड़ता है। वो लेट के बैठ के खड़ा तो हो ही नहीं पाएंगे आप बिल्कुल। अच्छा, इतनी तंग गुफा है? तंग गुफा है बिल्कुल, मतलब खड़े होने की जगह नहीं? खड़ा होने की जगह ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल। થોડી વાતચીત બાદ કેટલાક ગામ લોકો અમારી સાથે આવવા તૈયાર થઈ ગયા। तो मादागिरी पर्वत तक हम पहुंच चुके हैं और ऐसा शायद पहली बार होगा कि 10-20 साल में कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया कि खतरे यहाँ पर बहुत हैं, जंगली जानवर है, नक्सल मूवमेंट है और जैसा यहाँ पर कहा जाता है कि सांप बिच्छुओं का एक ऐसा डेरा है जिसमें एक कदम रखना भी खतरा मोल लेने के बराबर है। लेकिन मेरे साथ ये दोनों साथी हैं, दोनों एक बार पहले इस पर्वत तक जा चुके हैं, अमृत कुंड तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज हिम्मत करके दोनों साथ हैं। आप दोनों चलेंगे मेरे साथ ऊपर? तो आइए वो सफर शुरू करते हैं जिसका आपको और हमको बेसब्री से इंतजार है। चलिए। અમારી નજર ગેટ પર પડી। અહીં ગૌતમ ઋષિ નામ લખ્યું હતું। તેના વિશે ગામ લોકોને પૂછ્યું તો એક નવી વાત જાણવા મળી। કહે છે કે પૌરાણિક કાળમાં ગૌતમ ઋષિનો આશ્રમ પર્વત પર હતો, જ્યાં હાલ એક મંદિર છે। ગૌતમ ઋષિ મતલબ અહલ્યા અને તેની કહાની જોડાય છે શ્રીરામ સાથે। અમે પર્વતના શિખર તરફ જઈ રહ્યા હતા। અહીં એક શિવલિંગ હતું। અહીંથી અમારી સાથે આવવા સ્થાનિકો સ્પષ્ટ ના પાડી। यहाँ आगे नागलोक चालू होता है और आगे जाना बहुत अभी तक खतरे कौन सा से खाली है। नागलोक मिल गया जो आगे नहीं मिलेगा? नहीं, आप मैं चलो बिल्कुल तो सही। नहीं अरे जाऊंगा कोई बात क्योंकि नहीं, थोड़ा सा आगे। हर 1-2 कदम में यहाँ देखो, आधा रास्ता आपको हो देखिए, चुका है। आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मैं यहाँ से वापस घर जा रहा हूँ। ઝેરીલા સાપના ડરથી એક સ્થાનિકે પીછેહટ કરી તો બીજાની હિંમત પણ તૂટી ગઈ। मैं वापस जा रहा हूँ। देख भाई, अगर आपको जाना है तो आप इनके साथ जाइए। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मेरा साथी कहाँ जा रहा है? मैं नहीं जाता भैया, मैं नहीं जाता। अरे मैं कोई भी बात जा नहीं, रहा तुम चलो ना, हम दोनों चल देंगे। रहने दो। થોડા સમય બાદ અમે માંદાગીરી પર્વતના શિખર પર હતા। ये मांदागिरी पर्वत का ये बिल्कुल टॉप है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग आया जाया करते थे, लेकिन उसके बाद सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। क्या वजह रही? क्या सांपों की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया, या फिर नक्सलियों की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया, या फिर अमृत कुंड में अमृत मिला ही नहीं लोगों को? सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए मुझे खुद पहले उस कुंड को तलाशना पड़ेगा जो इस पहाड़ में कहीं पर छुपा हुआ है। અમારી ટીમ આગળ વધી તો દૂર કાઇલ મૂવમેન્ટ નજર આવી। શું આ સાપ હતો? નજીક ગયા તો કંઈ ના મળ્યું। કદાચ નાગલોકની કહાનીએ મગજમાં ભ્રમ ઊભો કર્યો હતો। અમે કુંડ જવાનો રસ્તો શોધી રહ્યા હતા। देखिए, उस अमृत कुंड की जो निशानी मुझे बताई गई थी वो ये था कि इस तरह से पत्थरों पर कुछ लोगों ने पेंट बना दिया है, कुछ मार्क लगा दिया था ताकि पता चल जाए कि यहीं पर वो गुफा है जहाँ पर अमृत कुंड है। પથ્થરો પર કોઈ નિશાનીઓની શોધ હતી, પરંતુ અમને કંઈક અલગ જોવા મળ્યું। આ તો એક કોબ્રા નાગ હતો। સાપ કદાચ રસ્તો છોડવા તૈયાર નહોતો। અમે બીજા રસ્તાથી આગળ વધ્યા। થોડું આગળ વધ્યા, વધુ એક નાગ રસ્તામાં આવી ગયો।
ओह गॉड, ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है और इसका जहर चंद मिनटों में इंसान को ख़त्म कर देता है। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था ये सिर्फ कहानियाँ हैं कि यहाँ पर इतने ख़तरनाक सांप हैं और ये नागलोक हैं, लेकिन वाकई में यहाँ पर इस तरह के नाग देख के मेरी खुद हालत अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप ख़तरे में जा रहे हैं, आप खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्रेट का डसा कभी भी बचता नहीं है, बहुत ही मुश्किल। और यहाँ से तो मैं आबादी से इतनी दूर हूँ कि मैं शायद ही हॉस्पिटल की शक्ल देख पाऊँगा, और अगर इस तरह के सांप अंदर हुए गुफा में तो अंधेरे में ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। ખબર નહોતી ક્યાંથી સાપ સામે આવી જાય। આ શું થઈ રહ્યું હતું? વધુ એક સાપ ડાળી પર લટકી રહ્યો હતો। સાપથી બચી અમે આગળ નીકળ્યા। ત્યાં પથ્થરો પર તીરનું એક નિશાન મળ્યું। अब यहाँ पर दीवार पे सिर्फ एक ही एरो का निशान बना हुआ है, ये एक एरो का निशान बना हुआ है, जिससे पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, जो लोगों ने मार्क आउट किया है कि यहाँ कुछ है। अब यहाँ क्या है नहीं पता, सिवाय इसके कि हम एक अंधेरी गुफा में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और जहाँ से वापस आने का हमको कोई अता पता नहीं है कि हम वापस आ भी पाएंगे या नहीं। કોઈ પણ જાણકારી વગર અમારી ટીમ અમૃત કુંડની શોધમાં અંધારી ગુફામાં પહોંચી। વિશેષ રજૂઆત જારી રહેશે। હાલ રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે। ઝેરી નાગથી પણ મોટો ખતરો ગુફાની અંદર હતો। કુંડ માટે કોઈ રસ્તો ન હતો। ક્યાંક બે શિલાઓ વચ્ચે ફસાઈ ગયા તો ક્યાંક શ્વાસ રોકાઈ ગયા, પરંતુ અમારે કોઈ પણ કિંમતે કુંડ સુધી પહોંચવાનું હતું। જો કોઈ કુંડ મળી ગયો તો એ સાબિત કેવી રીતે કરશું કે તેમાં અમૃત છે? પરંતુ અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે અમારી ટીમ આગળ વધી। ગામ લોકોએ કહ્યું હતું અમૃત કુંડનો રસ્તો ઘણો મુશ્કેલ છે, પરંતુ આટલો મુશ્કેલ? અહીં તો ઊભા થવાની પણ જગ્યા નહોતી। आप समझिए कि यहाँ पर इस तरह से हाथ टेक के चलना पड़ रहा हो, और जहाँ पर आपको पता है कि हर तरफ सांप है, वहाँ पर ज़रा भी अगर सांप की सरसराहट सुनाई दे तो जान हलक में आ जाएगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते। જેટલી મોટી પડતાલ એટલા મોટા પડકાર। અંદર જતા જ ગુફાએ ઘૂંટણીએ પડાવી દીધા। આગળનો રસ્તો વધુ કઠિન હતો। अब इतना भी स्पेस नहीं है कि आप घुटनों के बल चल सकें, क्योंकि पत्थर जो है वो ठीक सर के ऊपर है। ज़रा सी गलती जो है तो आपको हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ जाएगा। मुझे पूरा रगड़ के चलना पड़ रहा है ताकि मैं क्रॉस कर सकूं। પરંતુ તીરનું નિશાન એ જ હતું જેને ગામ લોકોએ બનાવ્યો હતો। આ રસ્તો નહીં, બે શિલાઓ વચ્ચેની જગ્યા હતી જ્યાં અનેક મુશ્કેલીઓ હતી। वहाँ है रास्ता थोड़ा सा। अरे सर नहीं जा पाएंगे अंदर, समझे सांप काट लेगा तो। सांप की आवाज होगी, अरे नहीं सर, तो आ जाएंगे। तो निकल नहीं पा रहे यहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे छोड़ आ नहीं सर, हो गया आप नहीं जा अगर पाएंगे। सांप की आवाज आएगी तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं वहाँ सर, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं ठीक नहीं एक आगे। बार, सिर्फ एक बार आओ, मेरे कहने से आओ। अरे सर समझा करे, दिक्कत है आगे बहुत ज्यादा, पहले सांप है। आओ। હવે આગળ વધુ અમારી મજબૂરી હતી।
अमृत कुंड की तलाश में मैं खुद अब एक ऐसे मैच में फंस गया हूँ जहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि मैं सही सलामत निकल पाऊँगा। आगे बढ़ते बढ़ते गुफा की हालत ये होगी कि अब रेंगना भी मुश्किल हो रहा है, और जाहिर है जब जिस जगह पर आप रेंग भी ना सकते हो वहाँ पर आपको खतरा तो होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये छत जो है और नीचे होती जा रही है। अब आप देखिए मेरे जिस्म रेंग कर भी निकलना यहाँ से मुश्किल हो गया है। पता नहीं मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया। मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर कदम के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ रोशनी लग रही है। हाँ देखो, हो सकता है उधर कोई रास्ता हो, क्योंकि इतना लंबा वापस नहीं चल पाऊंगा। किसी को आवाज मारूं? आवाज किसको मारोगे? यहाँ पे मेरे तुम्हारे अलावा कौन है? आओ, आते रहो, सांस धीमे धीमे लेना, आते रहो। अरे बाप रे, कैसे कैमरा अड़ गया? मैं आता हूँ। बाबा आप नहीं आ पाएंगे। कैमरा मुझे दो। आराम से पकड़ा, खींचो। कभी आपका हो गया, आप नहीं आ पाएंगे। जरा सा जिद्दीपन है आपको इस तरह की मुश्किल में डाल दे। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मैंने नहीं सोचा था कि अमृत कुंड जो है मुझे मौत के मुंह तक ले जाएगा, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं। આગળ જતા થોડો પ્રકાશ જોવા મળ્યો, જેનાથી આશા જાગી। જીવતા રહેવા તેને પાર કરવું જરૂરી હતું। કોઈ પણ રીતે બહાર નિકાળવામાં સફળ રહ્યા। ओह, 2 घंटे में इस अंधेरी गुफा में था जहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा। अभी थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई दी है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस वक्त ये हल्की सी रोशनी और इस हवा ने मुझे कितनी राहत दी। અહીંથી જેવા આગળ વધ્યા અમૃતકુંડ સામે જ હતો, પરંતુ આગળ કોઈ રસ્તો જ નહોતો। ગુજરાતીઓના